سب سے پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے جب آپ کنفیوز نہ ہوں تو کہ ہم فولڈر کہاں بنائیں اور فائل کہاں بنائیں۔ فولڈر کیا ہوتا ہے؟ جو یلو قسم کا آپ کو ایک ڈبہ نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ والا اس طرح کا، اسے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ فولڈر ہوتا ہے۔ اور فائل اس کے اندر کوئی بھی ایم ایس ورڈ کی فائل ہو، امیج کی فائل ہو یا کچھ بھی ہمارے پاس فائل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ تمام چیزیں جو ہم کرنے والے ہیں اس کا بیسک لنک کہاں سے ہے۔ تو رائٹ کلک کرنے سے سب سے پہلے انسٹال اگر ہوا ہے آپ کے کمپیوٹر میں تو پھر اتنا ایشو نہیں ہوتا۔ تو انسٹال کرنے کے بعد نیو فولڈر میں آپ جائیں گے، ایک اپنے نام سے فولڈر آپ کے پاس ہونا چاہیے، ان کے اندر ہر کلاس کا ایک اپنا اپنا فولڈر ہونا چاہیے۔ تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ پہلے آپ فولڈر کریٹ کریں جہاں پہ وہ فائل رکھنی ہے۔ 2-3 طریقے ہیں اس کو کرنے کے، وہ میں آپ کو سارے بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے بیسٹ یہی ہے کہ جہاں پہ وہ فائل رکھنی ہے اس فولڈر ایک فولڈر بنائیں اور وہاں پہ وہ فولڈر میں رکھیں۔ سپوز کریں یہ فولڈر آپ نے بنا لیا، میں نے اپنے نام سے ایک فولڈر بنا لیا۔ اس کے بعد یہاں پہ 2 آپشن ہوتے ہیں کہ آپ کریٹ کر سکتے ہیں۔ ایک تو آپ اسٹارٹ مینیو میں چلے جائیں اور اسٹارٹ مینیو میں جا کے ایم ایس آفس سرچ کریں، یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہا، تو جو زیادہ یوز نہیں کرتے وہ یہاں پہ نظر نہیں آئے گا، ان کو یہاں سرچ کرنا پڑے گا۔ جسٹ ورڈ بھی لکھ سکتے ہیں، تو ورڈ لکھنے سے بھی ہمارے پاس آ جائے گا، آفس لکھنے سے بھی آ جائے گا، مائکروسافٹ لکھنے سے بھی آ جائے گا۔ تو یہاں سے ہم کلک کریں گے۔ اگر یہاں سے کلک کرنے کے بعد جب اوپن ہوگا تو آپ دیکھیں گے اس کو تھوڑا ایک چیز یاد رکھیے کہ جب بھی پیپر بنا رہے ہوں اس کا جو زوم ہے نا، یہ زوم ہوتا ہے یہاں یہ زوم 100% رکھیں تو آپ کو زیادہ کلیئر ہوگا کہ جو آپ نے رائٹنگ سائز رکھا ہے وہ اچھا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ 100% وہی سائز ہوتا ہے تقریباً جو پیج کا سائز ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد سب سے پہلے اس فائل کو سیو کر لیا کریں۔ اسسٹ ٹیچر کیا کرتے ہیں یا یوز کرنے والے کیا کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے تمام پیپر ٹائپ کر لیتے ہیں، پھر لائٹ چلی جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، وہ سارا پیپر ختم ہو جاتا ہے، اور یہ لاسٹ میں جب یہاں سے کلوز کرتے ہیں تو کلوز میں سپوز کریں یا میں کچھ بھی لکھتا ہوں اور میں یہاں کلوز کرتا ہوں یہاں سے، تو وہ انہوں نے کہا یس یا نو، تو پھر یہاں سے وہ سیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ غلط اسٹریٹجی ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے یہ ایک اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ اس کو ہم کینسل کریں گے اور یہاں پہ سب سے پہلے اوپر جائیں گے آپ یہ فائل مینیو میں، یہاں پہ آپشن آپ کے پاس ہے نیو فائل اوپن کریں گے، اوپن ہے یعنی کوئی پہلے سے سیو ہے، یہ اس کو سیو کرنا ہے آپ نے۔ تو کیونکہ فرسٹ ٹائم ہم کر رہے ہیں سیو بھی کر سکتے ہیں، سیو ایز بھی کر سکتے ہیں، دونوں ٹھیک ہے، تو میں اس کو سیو ایز کرتا ہوں۔ اب دیکھیں اگر غور سے اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو کیا کلیئر ہو رہا ہے کہ ایک تو یہاں پہ آپ نے نیم دینا ہے فائل کا، پراپر دیں تو زیادہ بیسٹ ہے جو آپ بنا رہے ہیں، ادروائز جو بھی یہاں لکھا ہوگا ایم ایس ورڈ اس کو اٹھا لے گا، لیکن وہ اکثر مناسب نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ فائل کا پراپر نیم دیں، جو بھی آپ ٹیسٹ بنا رہے ہیں یا ڈاکومنٹ یا فائل یا اسائنمنٹ کچھ بھی۔ اس کے بعد یہاں پہ ڈفرینٹ فائلس کے ٹائپس ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس یہ 2007 ہے ورڈ آپ کے سسٹم میں بھی اور اس سسٹم میں بھی، تو اس میں کوئی پی ڈی ایف موجود نہیں ہوتا۔ آپ پی ڈی ایف کے بجائے ورڈ ڈاکومنٹ ہی کریں گے تو ورڈ ڈاکومنٹ ہی پہلے سے آلریڈی انسٹال ہوگا۔ اس کے بعد اگر دیکھیں تو یہ بائی ڈیفالٹ ڈاکومنٹس میں جاتا ہے، دیکھیں یہ اوپر اگر آپ دیکھیں تو بائی ڈیفالٹ کہاں جا رہا ہے؟ ڈاکومنٹس میں جا رہا ہے۔ تو اگر آپ بغیر اپنی لوکیشن کو سلیکٹ کیے آپ موو کریں گے تو ڈاکومنٹ میں سیو ہوگا۔ ہو سکتا ہے کسی ایسی جگہ پہ بھی ہو جائے جو آپ کو آئیڈیا بھی نہ ہو، ڈاکومنٹ کے علاوہ بھی کہیں ہو سکتا ہے کہ ریسنٹ آپ نے کسی اور فولڈر میں کیا، ابھی وہاں نہیں کرنا چاہتے تو وہ وہاں پہ بھی سیو ہو سکتا ہے۔ تو یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہوگا یہ دیکھیں دس پی سی، اس کے بعد مائی ڈاکومنٹس، یہ ڈاکومنٹس کا جو فولڈر ہے یہاں پہ وہ سیو ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے یہاں نہیں کرنا، ہم نے کہاں کرنا ہے جو ہمارے پاس فولڈر موجود ہے۔ فولڈر کہاں پہ ہمارے پاس تھا؟ جو میں نے بنایا ہے ڈیسک ٹاپ کے اوپر، میں نے یہ ڈیسک ٹاپ کے اوپر کیا اور یہاں سے میں نے اپنے نیم کا جو فولڈر ہے یہ سلیکٹ کیا اجمل کے نیم سے، اور اجمل کے نیم کے بعد دیکھیں ابھی اس میں کچھ بھی موجود نہیں ہے، میں اس کو جو بھی نام دینا چاہوں وہ میں دیکھ کر انٹر کروں گا۔ ابھی اوپر دیکھیں یہ پہچان ہوتی ہے، یہ اوپر آپ نظر آ رہا ہے ٹیسٹ، یہ پہچان ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو چیز کریٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ یہ سیو ہونے کے بعد جب نام دیا آپ نے تو یہ پہچان ہوتی ہے، اگر یہاں نام نہیں آتا اس کا
तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक सेव नहीं हुआ होगा, फिर आपको दोबारा सेव करना पड़ेगा। एक मेथड तो ये था, लेकिन इसको हम क्लोज करते हैं। दूसरा मेथड जो इजी है और अच्छा है, जिस फोल्डर के अंदर आपने करना है वहाँ राइट क्लिक करें, पहले फोल्डर को सेलेक्ट कर लें, फोल्डर ओपन करें और जहाँ करना है वहाँ पे राइट क्लिक करें और न्यू पे जाए, और न्यू पे जाए आपको नीचे मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ही आप नेम दे दें, पहले ही नेम दे दें, टेस्ट 1 के नाम से मैंने नेम दे दिया और इसको ओपन करूँगा। अभी हमें जस्ट कंट्रोल एस करना पड़ेगा। मैं कुछ भी लिखता हूँ, मैं कुछ भी ये लिखता हूँ और इसको मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सेलेक्ट करेंगे, मैं कुछ भी लिखता हूँ और अब मैं कंट्रोल जस्ट एस करना पड़ेगा। अभी मुझे उसकी कोई डायरेक्टरी नहीं देनी पड़ेगी, सेव एज नहीं करना पड़ेगा, उसकी लोकेशन चेंज नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, सॉरी इस बारे में मिस्टेक हो गई। तो ये सब कुछ आप लोगों ने स्टार्टिंग जो है यहाँ से होगी, इससे आपके कम मतलब जो फाइल है वो ख़त्म नहीं होगी। अभी अगर मैं सेव नहीं भी करता और मैं क्लोज करना चाहता हूँ तो यस के जस्ट बटन पे दबाएंगे, मेरी डायरेक्टरी ऑलरेडी गिवन है तो ऑलरेडी वहीं पे सेव हो जाएगा, हमें कोई और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक ईजी मेथड है, आप बजाय वहाँ से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये तो सबसे बेसिक था। इसके अलावा एग्जाम्पल के तौर पर न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ से। जी यहाँ तक क्लियर हो गया? जी मैम क्लियर हो गया? कोई इशू है तो पूछ लीजिए। अच्छा, इसके बाद मैं फाइल क्रिएट करता हूँ न्यू पे। मैम आप भी देखें एक मिनट जस्ट। मैं यहाँ पे न्यू पे गया और न्यू पे जाके मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने फाइल क्रिएट, एक है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यहाँ से अगर आपको नजर आ ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास ब्लैंक है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स हैं, स्टार टेम्पलेट्स हैं, माई टेम्पलेट्स है, न्यू फॉर्म ऑफ एग्जिस्टिंग है, नीचे बहुत सारे अगर बिजनेस आपने बनाना है, क्या क्या काम करने हैं ये उसके बारे में आपके पास मौजूद है। अगर आप खुद से अपना डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। स्टार टेम्पलेट पे जाएंगे तो वहाँ उन्होंने ये देखें बहुत सारे, अगर आपने लेटर लिखना है किसी को या कुछ असाइनमेंट्स बनानी है तो आपको फ्रंट पेजेस भी यहाँ से मिल जाएंगे। और ये देखिए ये बहुत सारी लेटर लिखनी है, किसी को CV बनानी है आपने, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी डिज़ाइन मिल जाएंगे। आप जस्ट वहाँ पे जाएंगे और क्लिक करेंगे तो उसी तरीके में जस्ट एडिटिंग करेंगे और आपका उस तरह डिज़ाइन बना हुआ आ जाएगा। मुश्किल नहीं है ये। अदरवाइज़ जैसे आपने पेपर बनाने होते हैं, ये तमाम चीज़ें करनी होती हैं, तो आप ब्लैंक पे जाएंगे, ठीक है, और ब्लैंक पे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाएंगे और इसको क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक ब्लैंक चेंज बिल्कुल फ्री ओपन हो जाएगा। सर ये आपने कहाँ से ओपन किया? ये ओपन से न्यू से स्टार्ट में जाके ये ऑफिस जो मेन्यू होता है वहाँ जाके न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू पे ही हमारे पास तमाम चीज़ आ जाएगी। इससे बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे लेटर किसी को लिखने है, लिस्ट लिखनी है, मार्केटिंग करनी है, यूज़र के तौर पर पेपर बनाने हैं, ठीक है, तो आपके यहाँ पे मौजूद नहीं, क्योंकि ऑफ ये अभी हम नेट हमारे पास मौजूद नहीं है। ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें भी मौजूद होती हैं जो आपको मिल जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, ये करने के बाद आपने सबसे पहले तो मैंने न्यू फाइल बना ली, इसको बस कंट्रोल में एस करूँगा तो एक हमारे पास यही डॉक्यूमेंट की फाइल आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं अपने फोल्डर पे जाऊँगा, एस1 के फोल्डर पे जाऊँगा और test2 के नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ, जो भी आप नेम देना चाहें। तो ये हमारे पास सेव हो चुका है, इस चीज़ की ये हमारे पास। उसके बाद सबसे पहले जो खास तौर पर रूल होता है उस रूल को समझना है आपने। पेज लेआउट पे जाएंगे, पहले कहाँ जाएंगे? पेज लेआउट पे। पेज लेआउट पे जाने के बाद होता है मार्जिन। आप बच्चों को दिखाते हैं इतनी इतनी मार्जिन लाइन लगानी है, तो ये कंप्यूटर में मार्जिन लाइन लगाने का डिफरेंट बाय डिफॉल्ट होता है। ये 1 इंच 1 सेंटीमीटर तकरीबन अप डाउन सब कुछ होता है, और लेकिन नैरो भी होता है, ज़्यादा भी होता है, जितना आप करना चाहें उसके मुताबिक कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जब आप पेपर बनाएं स्कूल के या असाइनमेंट्स बनाएं तो जो मैं रिकमेंड करूँगा वो है 0.5। तो ये 0.5 ये टॉप भी, बॉटम भी, लेफ्ट भी और राइट भी, ठीक है। तो ये 0.5 ही सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले पेज की सिलेक्शन ज़रूरी है। आमतौर पर ये 1-1-1 ही चलता है, जब आप असाइनमेंट्स बनाएंगे तो 1-1-1 ही चलेगा आमतौर पर, ठीक है। लेकिन जब यहाँ के पेपर बनाएंगे, बच्चों के लिए असाइनमेंट्स बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, तो बेस्ट यही होता है कि आप यहाँ पे रखें। अभी अगर पहले यहाँ पे था, अब ये कर्सर यहाँ पे चला गया, मीन उसका जो फासला है लेफ्ट राइट डाउन आप
वो क्या हो गया, बहुत कम हो गया है। तो इस चीज़ का हम थोड़ा सा अब आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले पेज लेआउट समझ आ गई। उसके बाद है ओरिएंटेशन होती है। उसके बाद ओरिएंटेशन होती है। ओरिएंटेशन में दो तरह की ओरिएंटेशन आपके पास होती है। एक पोर्ट्रेट होती है। पोर्ट्रेट हम जैसे आमतौर पर लंबाई में कर रहे होते हैं, और उसके बाद लैंडस्केप होती है। लैंडस्केप अगर हम कोई इस तरीके की चीज़ बनानी है, अगर आपको यहाँ पे इसका थोड़ा साइज में कम कर देता हूँ तो आइडिया कुछ छोटा होगा। अगर इस तरीके से हॉरिजॉन्टल जिसे हम कहते हैं हम जुबान में, हॉरिजॉन्टल अगर कुछ बनाना है तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट आमतौर पर यही होता है हमारे पास इसी फॉर्म में। जी क्लियर हो गया। उसके बाद साइज होता है कि आपने साइज किस तरीके का रखना है। आमतौर पर जो हमारे पास प्रिंटर होता है, और जो आप लोगों ने A4 पेज सुना होगा, तो आप यहाँ पे A4 सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने लेटर किया, लेटर A4 से बड़ा होता है, तो फिर आमतौर पे ये बाय डिफ़ॉल्ट बाय लेटर ही होता है, आप लोग इसी पे सेव कर देते हैं। लेकिन जब A4 पे उसको निकाला जाता है तो अक्सर ये होता है लास्ट वाली एक आधी लाइन टाइप हो जाती है। ये और किया कभी देखिए, लास्ट में बिल्कुल जो आखिरी एक आधी लाइन है वो कट जाती है, क्योंकि इसका साइज जो होता है लेटर का, अगर आप गौर से देखिए, शायद आपको अभी क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो लेटर होता है 8.5 और जो A4 होता है 8.27 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तकरीबन इतना फर्क होता है थोड़ा सा। अब मैं A4 करूँगा तो आप क्या कह रही सबसे पहले देखिए, एक लेटर हमारे पास मौजूद है, लीगल होता है, बड़ा साइज होता है, A4 से तकरीबन 2-4 इंच बड़ा होता है। इसकी चौड़ाई तो 8.5 ही होती है, लेटर जितना होता है, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो 14 होती है। उसकी लंबाई 11 होती है, इसकी लंबाई 14 होती है। लेटर में और A4 में क्या फ़र्क है, लेटर की चौड़ाई बड़ी होती है, लंबाई कम होती है, और A4 की चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है, ठीक है। कि हम A4 का हमारे पास साइज होता है पेपर का आमतौर पर, तो हम A4 को क्लिक करेंगे तो अभी आपको आइडिया होगा थोड़ा सा उसकी जो चौड़ाई है वो क्या होगी, विड्थ कम होगी और लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होगी। इसको अगर दोबारा देखना है तो इसकी थोड़ा यहाँ पे करके आप देख सकते हैं साइज़, ये हमारे पास लेटर का साइज़ था, तो लंबाई कम है और चौड़ाई ज़्यादा है। और अगर हम इसको A4 करते हैं, A3 भी बहुत बड़ा साइज होता है। जो जितने भी आर्किटेक्चर के डिज़ाइन निकलते हैं या आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट और डिज़ाइनिंग दिखाते हैं, वो A3 पे निकलते हैं। A3 देखेंगे तो ये देखें काफ़ी बड़ा साइज होता है। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले A4 सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप आगे चलेंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। ये तो पेपर लेआउट का था कि सबसे पहले मार्जिन लाइन, ओरिएंटेशन, साइज, ये लाजमी लिख लीजिएगा। उसके बाद कॉलम आपने अखबार पढ़ी होगी, अखबार में इस तरह होता है कि इस तरह के 2, 3 या 4, 5 कॉलम्स बने होते हैं, ठीक है। मैंने भी बच्चों के जब पेपर बना रहा था तो उसमें ये होता है कि अगर हम उसी तरीके से कर देंगे कॉपी पेस्ट तो वो 2-3 पेजेस पे चले जाते हैं। कॉलम बना देंगे वो साइज़ कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। खैर आमतौर पर बन ही रखेंगे हम इसको, ज़्यादा हम नहीं करेंगे। 2 रखेंगे तो 2 बन जाएंगे, लेकिन इसका एग्जाम्पल बाद में हम देखते हैं जब कोई भी इशू कॉपी पेस्ट करके देखते हैं। कॉलम आमतौर पर हम क्या लिखते हैं। कॉलम से क्या होता है? इसको ये है कि मिसाल में बहुत ज़्यादा वो टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब ये देखिए मैंने उनको कॉपी पेस्ट किए हैं, तो कॉपी पेस्ट 2 पेजेस पे हो गया। अगर मैं इसको सेलेक्ट ऑल करके कॉलम करूँगा, कॉलम 2 करूँगा तो वो इस तरह हो जाएगा। जैसे मैथ में नहीं पढ़ा कॉलम रो कॉलम, ये वही 2 कॉलम बन जाएंगे। अगर इसी को सेलेक्ट करके मैं कॉलम में जाता हूँ और 3 कॉलम बना देता हूँ तो एक और भी लाइन यहाँ पे आ सकती है, यानी वर्ड उतना ही है, तो हमारे पास 2 पेजेस पे जाने के बजाय हम उसी में भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए आप 3 पेजेस हो गए। ये सर 1 पे किया हुआ है, ये 1 पे किया हुआ है। इसको हम सेलेक्ट ऑल करते हैं और कॉलम 3 पे करते हैं, तो अब ये देखें वो तीनों तकरीबन एक ही पेज पे आ गए हैं। इस तरह वो बहुत कम डाटा आपके कंप्यूटर के नोट्स देखे हैं वो भी इसी तरह कॉलम के फॉर्म में बने हुए हैं,
अगर वैसे हम करते तो जो एक पेज पे था वो कम से कम भी 3 पेजेस पे जाना था। कॉलम के फॉर्म में ग्रुप डाटा काफ़ी, लेकिन पेपर जो होता है आमतौर पर हम कॉलम के फॉर्म में नहीं बनाते, लेकिन मैं बनाता था बच्चों को क्योंकि वो छोटे छोटे होते थे तो उनको हम सेपरेट कर लिया करते थे। ये हमारे पास है पेज लेआउट का। उसका ब्रेक नंबर लाइन हम जब नोट्स बनाते हैं तो लाइन नंबर लगाने की जरूरत नहीं होती, हम आमतौर पर लगाते नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे आपको असाइनमेंट्स में हो हर लाइन के नंबर्स लगाने हैं, लाइन के नंबर साल का ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, कंटिन्यूस लगाने हैं। ये देखिए उन्होंने ये साथ आपकी नंबरिंग साइज दी, एक एक लाइन की नंबरिंग दी, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं, लेकिन ये आमतौर पर हम लगाते नहीं हैं। जहाँ जरूरत होती है तो हम इसको बुलेट्स फॉर्म में मुकम्मल कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वाटर मार्क। जब भी नोट्स बनाए ना तो वाटर मार्क लाजमी है। वाटर मार्क होता है यहाँ पे अगर कोई नोट्स पढ़े हैं कि बैकग्राउंड पे एक हल्का सा कोई हल्की सी लाइन आ जाती है बैकग्राउंड पे, देखना थोड़ा क्लियर और क्या जा सके। कुछ हुआ क्लियर? चलिए खैर, तो अगर आप वहां से देख लें, वहां से निकालें, वाटर मार्क निकालें यहाँ से, एक मिनट निकाल रही हूँ। ये पेज लेआउट पे जाएंगे, अभी वो एमएस करते हैं ना जी, ये पेज लेआउट में जाएं, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम मैंने बता दिया है, लाइन नंबर बता दिया है। वाटर मार्क में जाएं। हाँ जी आ गई। अब वाटर मार्क में डिफरेंट वाटर मार्क हैं, ये स्टाइल हैं कि यहाँ पे कोई भी वर्ड लिखना चाहें या कॉन्फिडेंशियल है तो कॉन्फिडेंशियल लिख सकते हैं, डू नॉट कॉपी तो वो लिख सकते हैं। अदरवाइज नीचे चले जाएं, वो कस्टम वाटर मार्क, अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों के लिए बनानी है तो डेफिनेट सी बात हम चाहेंगे कि पीछे या तो स्कूल का लोगो हो या स्कूल का नेम हो, ताकि वो कोई और कॉपी पेस्ट ना करे, कोई और इदारा कॉपी पेस्ट ना करे। तो नो वाटर मार्क है तो ऊपर चला जाएगा। अगर पिक्चर वाटर मार्क है तो यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट करेंगे आप, यहाँ से कोई भी पिक्चर एग्जाम्पल के तौर पर आप स्टॉप पे चले जाते हैं। मैं जस्ट ये चाहता हूँ, और ये गौर से वही देखिए यहाँ आ रहा है, यहाँ ऑटो लिखा हुआ है और वॉश आउट लिखा हुआ है। ठीक है, वॉश आउट ही करेंगे तो बहुत डार्क आएगा, तो जो फ्रंट पे कलर है वो नज़र ही नहीं आएगा, तो वॉश आउट ही करेंगे ताकि बहुत हल्का सा नजर आए। और यहाँ पे अप्लाई हम कर देंगे तो यहाँ पे आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा। इंसर्ट कर दूँ मैं पिक्चर? हाँ, पिक्चर इंसर्ट करें, सिलेक्ट वॉश आउट पहले हो गया है, अप्लाई कर दूँ? अप्लाई कर दें। आप पीछे देखेंगे वो पिक्चर हल्की सी आ जाएगी आपके पास, ठीक है। यहाँ पे भी नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास आ चुका है वैसे, लेकिन वहाँ पे नज़र। अब इसकी कुछ स्टाइल होते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने पिक्चर नहीं करनी और टेक्स्ट करना है तो टेक्स्ट वाला नीचे वाला ऑप्शन होता है, टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पर वीबली लर्निंग स्कूल हम करते हैं तो वीबली लर्निंग स्कूल लिख के इसके बाद फॉन्ट कौन सा देना है, ये फॉन्ट बड़ा ज़रूरी होता है। वो कैलिब्री कभी भी नहीं देना, फॉन्ट कैलिब्री कभी नहीं देना। उसके अलावा चल यहाँ देख सकते हैं, अगर देना भी हो तो दे दीजिएगा। साइज कितना रखना है ऑटो, वो ऑटोमेटिक पेज के मुताबिक एडजस्ट कर देगा। उसके बाद इसका वो कलर क्या रखना है, कलर भी दिए हुए हैं जो रखना चाहते हैं। और उसके बाद डायगोनल होना चाहिए या हॉरिजॉन्टल। डायगोनल होता है इस तरह, ये वाला, ये डायगोनल होता है, इस तरह का किशोर होगा, और हॉरिजॉन्टल होता है बिल्कुल सीधा। तो मैं डायगोनल अप्लाई करें आप ही, ठीक है, तो आप देखेंगे तो डायगोनल आपके पास आ गया, ठीक है। हाँ सर एक बार फिर समझा दो। आप सिंपल जाएंगे पेज लेआउट में, वाटरमार्क में, वाटरमार्क बिल्कुल नीचे चले जाएंगे कस्टम वाटरमार्क में, ठीक है। कस्टम वाटरमार्क में पिक्चर है तो पिक्चर लगा देंगे। अगर टेक्स्ट लगाना है आपने अपनी मर्जी से, तो पहले जो लिखा हुआ है वो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो भी लिखा होगा इसकी जगह जो आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, जैसे हमने वीबली लर्निंग स्कूल लिख दिया तो ये आप लिख सकते हैं। सर ये उर्दू में भी आ सकते हैं? ट्राई करते हैं, आ सकता है, आई थिंक सो। यहाँ पे मैंने जस्ट अपना नेम लिख दिया, तो देखते हैं कहाँ गया। जी बिल्कुल मेरे पास आ गया, वहाँ आपको नज़र नहीं आएगा। अच्छा सर ये तो बहुत लाइट है इधर भी ना, तो अगर इसको डार्क करना हो थोड़ा सा? जी डार्क आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप वहाँ पे जाएं
उसके बाद ये कलर है, ये देखिए ये कलर आपको नजर आ जाएगा, इसको जितना हम ऊपर जाने ये ये कलर ये है देखिए अब आपको भी यहाँ पे भी नजर आ जाएगा। ठीक है। हाँ देखिए आपको अच्छा, इसके ऊपर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने किया, अब आपको भी डार्क था तो आपको भी नजर आना शुरू हो गया है प्रोजेक्टर पे भी। हाँ जी सर अब तो ठीक है, लेकिन ये प्रिंटिंग में बहुत ज़्यादा डार्क आएगा, ये याद रखिएगा। तो प्रिंटिंग में जब इतना ज़्यादा डार्क किया आएगा तो ये जो पीछे फ्रंट पे लिखा हुआ ये अक्सर नज़र नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा इसको लाइट ही रखते होते हैं और प्रिंटिंग में आ जाता है वो। ठीक है जी, ये हो गया जी क्लियर। उसके बाद पेज कलर, आमतौर पर प्रिंटिंग में पेज कलर नहीं देते होते, ब्लैक एंड वाइट में पेज कलर नहीं देते, तो ये याद रखिएगा। पेज कलर वैसे है यहाँ पे जो भी आप देना चाहें तो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम आमतौर पर प्रिंटिंग में पेज कलर नहीं देते क्योंकि ब्लैक एंड वाइट है। जब आप कलर प्रिंटिंग कर रहे हो या कोई स्टाइल बना रहे हो कलर प्रिंटिंग में तो फिर करेंगे, ब्लैक एंड वाइट में कभी भी नहीं देना आप लोग, जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपको आइडिया में मोल कलर पे जाएंगे, नो कलर पे कोई कलर नहीं होगा, मोल कलर है तो ये बहुत सारे कलर हैं दुनिया जहाँ के कलर हैं, जो भी आप रखना चाहें ठीक है तो वो आप रख सकते हैं और यहाँ पे आप ओके कर देंगे तो आपका हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, नो कलर ही हम रखेंगे। पेज बॉर्डर आमतौर पर हम नहीं देते, आमतौर पर जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ देंगे, अगर कोई ऐसे असाइनमेंट आपको मिल जाए यूनिवर्सिटी से या कहीं से भी तो वहाँ देंगे, अदरवाइज से हम इसको जब पेपर बना रहे हों, बच्चों के नोट्स बना रहे हों, नोट्सों में दिया जा सकता है फिर भी। अगर आप छोटे बच्चों के नोट्स हैं तो वहाँ एक बॉर्डर लाइन दे देंगे, चलो अच्छा है, लेकिन आमतौर पर हम इसको नहीं देते क्योंकि इससे नुकसान दो तरह के नुकसान होते हैं, एक तो पेज का साइज कम हो जाता है और दूसरा ये है जब प्रिंटिंग होती है तो इंक बहुत ज़्यादा यूज होती है ये दोनों आपको पता नहीं चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ नाम कोई बॉर्डर नहीं, बॉक्स बनाना है तो बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपके पास ये डिफरेंट स्टाइल आ जाते हैं बॉक्स के, अगर इस तरीके से करेंगे और ओके कर देंगे तो ये देखिए उसी तरीके से हमारे पास वो डॉटेड फॉर्म में आ गया। अगर हम इसको ख़त्म करना चाहें तो हम नाम में क्लिक करेंगे जी, समझ नहीं आपको बात? उसी को दोबारा क्लिक कर देते हैं। हाँ नन पे कर नन से मतलब कोई भी नहीं होगा, बॉर्डर ख़त्म कर देंगे। जो भी 3D रखना है तो 3D में थोड़ा सा और ज़्यादा मोटापे की तरफ चला जाता है, यहाँ पे अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा वो एक आप इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। आमतौर पर हमें इसकी बॉर्डर लाइन जब छोटे बच्चों के नोट्स बना रहे हो तो किया जा सकता है, बड़े बच्चों के नोट्सों में और बाकी चीज़ों में जरूरत है। पेपर में खास जब पेपर बनाते हैं एग्जामिनेशन के उस वक्त जरूरत बिल्कुल नहीं होती, आपके असाइनमेंट्स में भी जरूरत नहीं होती। हमें आइडिया है जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो जो गर्ल्स होती थी ना, ठीक है, मैम भी इस चीज़ की गवाही देगी, वो बड़ा बड़ा फाउंड है, स्टाइलिश सा फाउंड है, कलर डिफरेंट है और बॉर्डर लाइन बड़ी प्यारी सी बॉर्डर लाइन हो, लेकिन वो टीचर इसकी चीज़ को पसंद नहीं करते। सिंपलिसिटी आपने भी देखी होगी सामने जो आपके पास आई है, कितना सिंपल सा लिखा हुआ है और टेबल बने हुए सिंपल से खाली खत्म। जी क्लियर हो गया, पेज लेआउट हो गया, ये इसको छोड़ दें भी आप, वो कलर देना चाहें तो दे सकते हैं, थीम देना चाहें तो ये किसी भी पेज की थीम है डिफरेंट तो ये स्टाइल है ये आप दे सकते हैं, अदरवाइज हम इसको भी अभी छोड़ देते हैं। इंसर्ट में हम चले जाते हैं, होम पे चले जाते हैं। अच्छा होम पे जब एग्जाम्पल के तौर पर मैं कोई भी नेम लिखता हूँ यहाँ पे, तो नेम लिखने के बाद अब कुछ चीज़ याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आंसर बनाते हैं आप, जब क्वेश्चन आंसर नोट्स बनाते हैं या फिर आप पेपर में क्वेश्चन लिखते हैं जो उनका साइज मैक्सिमम 12 होना चाहिए, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टाइम्स न्यू रोमन इसका ठीक रहेगा। टाइम न्यू रोमन की बजाय जो मुझे पसंद है और जो हम आमतौर में इस्तेमाल करते हैं होता है कैम्ब्रिया होता है, कैम्ब्रिया हेडिंग, ठीक है। ये एक टाइम न्यू रोमन भी अच्छा है वो, और कैम्ब्रिया एक मिलते जुलते हैं, तो कैम्ब्रिया हम ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसका स्टाइल ऑलमोस्ट वही होता है जो आपके बच्चों की बुक्स में स्टाइल होता है लिखने का। इसको हम थोड़ा साइज अगर बड़ा कर लेते हैं, अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा कि साइज कितना बड़ा होना चाहिए तो यहाँ से भी कर सकते हैं, आप सेलेक्ट करें, बजाय नंबर यहाँ देने के आप यहाँ से क्लिक करते जाएंगे, वो एक करके स्टाइल का साइज इंक्रीज होता जाएगा, यहाँ से कम होता जाएगा।
अब यहाँ पे एग्जाम्पल होता है, हम VC में चलते हैं अगर, तो ये फॉन्ट देखें, ये बिल्कुल सिंपल फॉन्ट होता है। अक्सर यूनिवर्सिटी वाले ये अलाउ करते हैं कि आप लोगों को यही फॉन्ट होना चाहिए। अभी मुझे बताएं, मैं इस वकामियाना के आगे लिखना चाहता हूँ, क्यों नहीं आ रहा? मैम इधर बताएं। सर वो कर्सर लेके आएंगे तो आ जाएगा ना। ये देखें कर्सर आ गया ना, मैं आगे कुछ भी लिखता हूँ अगली लाइन पे चला जाता है। वो असल में आप मैम एक कॉलम एक मिनट मैम, एक मिनट, ठीक है। एक मिनट। जी मैम, जी मैम समझ आई? मैम ने क्या कहा? मैं यहाँ के साथ कुछ लिखता जाता हूँ, वो इतने से पेज के अलावा लिखा ही नहीं आ रहा। जी आई नहीं आई? नहीं, कॉलम बने हुए हैं। वो कॉलम बने हुए हैं, वो खत्म नहीं किए। वो 3 कॉलम नहीं बनाए थे हमने? यस सर। वो कॉलम बने हुए हैं, तो मैं पेज लेआउट में जाऊंगा, यहाँ से कॉलम को खत्म करके 1 कॉलम करूंगा। जी अब क्लियर है? यस। तो ये चीज़ें माइंड में रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या कर रहे थे? होम पे गए हमने, जो आम तौर पर कुछ भी लिखने में 12 होना चाहिए। हेडिंग, छोटी मोटी हेडिंग जो है वो आप 14 या 16 रखेंगे। ये थोड़ी सी बड़ी हेडिंग करनी है, वो 18 रख रहे हैं। लेकिन जब छोटे बच्चे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मॉन्टेसरी के, तो 120, 22 भी रखी जा सकती है, ताकि उनको पढ़ने में क्लियर हो। जब भी आप छोटे बच्चों का पेपर बनाएं, कोशिश करें कि अगर उसे ये वाला ए नहीं आता तो वही ट्राई करें उससे वाला ए फाइंड करने को। वो कहाँ से मिलेगा? इंसर्ट में जाएंगे, सिंबल में मिलेगा, हम उस साइड पे चलेंगे। इन चीज़ों को थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा, और थोड़ा सा बच्चों के लिए साइज बड़ा रखा करें। बच्चों की साइज थोड़ा सा बड़ा रखा करें। मैंने ये अपने नेम को काफ़ी दफ़ा पेस्ट में, ये डिफरेंट लाइंस बन गई हमारे पास। क्या बन गई? अभी अगर आप देखें तो हर लाइन के दरमियान काफ़ी फासला है, हर लाइन के दरमियान काफ़ी फासला है। तो इतना फासला होना नहीं चाहिए। ना बुक्स में इतना फासला होता है, ना नोट्सों में होता है, ना की बुक्स में होता है। हम इसको कंट्रोल ऑल करेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे लाइन स्पेसिंग पे। सर कंट्रोल आर सेलेक्ट, कंट्रोल ए होता है, आर सेलेक्ट करें। नहीं कमेंट जैसे भी आप पेज को सेलेक्ट करते हैं वही हमारे पास है। उसके अलावा हम लाइन स्पेसिंग पे चले जाएंगे, और लाइन स्पेसिंग पे जाकर यहाँ सबसे पहले तो लाइन स्पेस कर देंगे 1। क्या कर देंगे? अगर लाइन स्पेस 1 नहीं करना चाहते तो कम से कम ये लास्ट में लिखा होगा रिमूव द स्पेस आफ्टर द ग्राफ या फिर बिफोर द पैराग्राफ, ये दोनों वर्ड हो सकते हैं। इस पर हम क्लिक कर देंगे तो ये काफ़ी हमारे पास साइज उनका कम हो गया। और फिर भी अगर हमें लगे ये साइज़ ज़्यादा है तो हम इसके लाइन स्पेसिंग भी क्या कर देंगे? कम कर देंगे, तो ये हमारे पास मिनिमम साइज़ आ जाएगा। ये क्योंकि हमने साइज़ का 48 रखा हुआ है यहाँ पे, जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए। अदरवाइज अगर इसको हम 12 करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा ये जिस इतना सा होगा। और ये 12 जब 100% पे लेके आएंगे, हमने जूम यहाँ पे कम किया हुआ है, तो और जब प्रिंटिंग होगी तो ये अच्छा खासा एक साइज हो जाएगा, बच्चों के लिए ईजिली अंडरस्टैंडेबल है। हाँ, जो छोटे बच्चे हैं मॉन्टेसरी के, पीजी के, आप उनके लिए ये जो छोटा स्टाइल 12 वाला है, इसको 16 भी कर सकते हैं, ये 14 भी कर सकते हैं, ताकि उनसे ईजिली पढ़ा जाए। और जो हेडिंग है उसे 18, 20, 22 तक रखा जा सकता है। इसको अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे 16 कर देता हूँ, तो ये बच्चों के लिए ज़्यादा ईजिली वो अंडरस्टैंड कर सकें। लेकिन जो क्लास 2 से लेकर अबव हैं सारे, उनके लिए कोई इतना इशू नहीं होता, उन्हें रीडिंग आती होती है, वो ईजिली रीड कर सकते हैं। जहाँ तक क्लियर है? बोल्ड करना है तो शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा। MS वर्ड की सबसे बड़ी जो लोगों की सुस्ती होती है, यानी बच्चे या जो भी इसको सॉल्व कर रहे होते हैं, जो माउस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनकी स्पीड उतनी कम होती है। कीबोर्ड का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, शॉर्ट कीज जितनी आप करेंगे, उतनी स्पीड आपकी ज़्यादा होगी। मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कंट्रोल PU इटैलिक, लेकिन मैंने 3 काम किए हैं और 3 सेकंड भी नहीं लगे, तक स्लो किए मैंने बताने के लिए। अगर आप कंट्रोल B बोल्ड हो गया, कंट्रोल को दबाए I दबाया इटैलिक हो गया, कंट्रोल U दबाया अंडरलाइन हो गया। U देखिए 3 सेकंड भी नहीं लगे। अदरवाइज आप क्या करते, आप ये देखें, कंट्रोल A की बजाय आप ये ऐसे करते हैं, जी मैम ऐसे करते हैं। अब आप ऐसे करेंगे तो 3 सेकंड तक भी यहीं पे लग गए। उसके बाद बोल्ड पे क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, और माउस का भी आप उतना ही भूल जाते हैं। तो शॉर्ट कीज लाजमी याद रखें।
शॉर्ट की लाजमी याद रखें, ये बड़ा फ़ायदा है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैंने जब भी साइज चेंज करना होता है मैं बहुत कम यहाँ जाता हूँ, मैं साइज चेंज करता हूँ, मैं ये दबाता हूँ सही क्या दबाते हैं? कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट पी। जो मैं बता रहा हूँ बेटा वो करें, ठीक है, ये बार बार प्रैक्टिस होती है। कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल शिफ्ट रहेंगे, अच्छा कंट्रोल शिफ्ट पी, इसमें क्या होगा? ये कोशिश करें राइट हैंड पे जाएं, राइट हैंड से कंट्रोल शिफ्ट पी एक ही हाथ से इसको करने की कोशिश करें, क्लोज करें, क्लोज करें ना, क्लोज करें इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहले वो जाता ही साइज पे है, तो जितना भी आपने साइज देना है तो वो आपको सेलेक्ट करें और उतना साइज हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट पी पे ही जाके आप उसका साइज भी रेगुलर डायरेक्ट या बोर्ड करना चाहें वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज कंट्रोल भी वगैरह ज़्यादा इजी है, ठीक है। तो यहाँ से साइज का इजीली हो जाता है। अदरवाइज उससे भी आसान तरीका एक और है कि आप लोग ये एक के ऊपर जाएं, जो एक बड़ा है इसके ऊपर लिखो कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन आ रहा है साइन नजर, यानी कंट्रोल दबा के ग्रेटर देन का जो कंट्रोल उसके बाद प्लस उसके बाद ग्रेटर देन का करेंगे तो वो ऑटोमेटिक हमारे पास ग्रेटर देन इसमें कौन सा है? यानी मेन अब कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन करेंगे ना, ग्रेटर देन का साइन वैसे तो नहीं आता, तो वो तो शिफ्ट के साथ ही आता है। कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट ग्रेटर देन करें, कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है। अब लेस देन करें, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी हो जाता है आप लोगों के लिए कि आप विद इन 1 सेकंड पूरे पेज के, मैं आप लोगों को पेपर जब अलाइनमेंट करता हूँ तो इसी तरीके से मैंने को आइडिया है, सबको आइडिया है, तो विद इन 1 सेकंड या विद इन 5 to 10 सेकंड एक पेपर को अलाइनमेंट किया जा सकता है। अगर ये आप लोग खुद करेंगे तो आप लोगों को फ्यूचर में बहुत फायदा होगा इस चीज़ का, ठीक हो गया। ये कुछ नई चीज़ें थी आप लोगों को बताने की, इसके अलावा हम कुछ चीज़ें और हैं, इसको थोड़ा सा हम आगे लेकर चलते हैं। यहाँ तक कोई इशू है तो पूछें। ठीक है सर, ए को चेंज करना बता रहे हैं। किसको? Small a। वो सिंबल में आएगा, हम उधर चलेंगे। अदरवाइज कोई भी चीज़ अगर आपको समझ ना आ रही हो तो आप नेट पे जाएं और वो यहाँ पे लिखें तो वहीं से कॉपी पेस्ट कर लें सिंबल। यहाँ पे अभी नेट में तो नहीं होगा, देखते हैं तो फिर चलिए आता नेट में मैं वहाँ से बता दूंगा, आपको यहीं से भी बता दूंगा। जी यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास था जो बेसिक स्ट्रक्चर है जब भी आप पेपर बनाएं। उसके अलावा कोई चीज़ राइट से स्टार्ट करनी है, लेफ्ट से करनी है, या सेंटर से करनी है। जो हेडिंग होती है हम लोग पेपर की हेडिंग जो आप देते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आप कौन सा पेपर है, क्लास 9 सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट इंग्लिश एग्जाम्पल तो ये आपने लिखा और टेस्ट नंबर लिख दिया 21। तो आप जस्ट इस लाइन को सेलेक्ट करें, ठीक है। इस लाइन को सेलेक्ट करने के बाद इसको कंट्रोल ई कर दें, क्या कर दें, कंट्रोल ई, तो सेंट्रलाइज हो जाएगा। यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं सेंटर, और सेंटर के ऊपर भी लिखा हुआ है कंट्रोल ई। तो जब भी आप किसी को क्लिक करते हैं ना तो उसके नीचे शॉर्ट फॉर्म डी होती है, वो भी याद रखेंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक ऐसे तेज होगी, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपने मैंने जस्ट इसके ऊपर आया, ये देखें तो ये कंट्रोल ई ऑटोमेटिक ऊपर लिखा हुआ है। और अगर इस साइड पे जाना है तो ये भी हमारे पास कंट्रोल एल है, कंट्रोल क्या है, एल है। और अगर मैंने राइट साइड पे करना है तो कंट्रोल क्या है, आर होगा। और जस्टिफाई किसी शॉर्ट की से नहीं होगा, जस्टिफाई होता पूरी लाइन पे जो चीज़ आ जाए वो हम इस तरीके से कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं। तो हम इसको कंट्रोल ई के जरिए मैंने सेंट्रलाइज किया, तो मैंने वापस आना तो दोबारा क्लिक करूँगा तो वापस उसी साइड पे चला जाएगा जहाँ से हम देख आए थे। अब एग्जाम्पल के तौर पर जो हेडिंग होगी, एक तो इसका जो साइज है मैं साइज उसी के मुताबिक कर देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर 18 हम दे देंगे, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि ये मेन मेजर हेडिंग होती है, इसको हम थोड़ा स्पेस दे देंगे। स्पेस देने के बाद कंट्रोल, इसके बाद हमें इसको बोल्ड करना होता है। आमतौर पर हम ये जो हेडिंग देते हैं इसको बोल्ड कर दें, डेट लिख दें, एक
साइड पे डेट लिख दें, आज की डेट क्या है। उसके बाद कंट्रोल बी अंडरस्कोर अंडरलाइन भी कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। जब आप सब लिख लिया करें ना, कोशिश करें उसके बाद कंट्रोल ए करें जब सब लिख लें, और उसके बाद इसको फाउंड चेंज कर दें, फाउंड आए वो कैम्बिया कर दें। जब सब लिख लें कंट्रोल ए करें, सेलेक्ट ऑल, उसके बाद ये करें। इसके बाद आप मैथ करते हुए आपने मैथ के पेपर बनाने हैं, और मैथ के पेपर में अगर एग्जाम्पल के तौर पर एक वर्ड होता है मैथ में पावर, और एक मैम कहते हैं जो पावर बेस पे होती है, ठीक है, मैम उसे क्या कहते हैं वैसे जो पावर बेस पे होती है? क्योंकि केमिस्ट्री में तो है ना वो H2 और 2 नीचे उसे क्या कहते हैं? ये देखिए कोएफिशिएंट नहीं कहते, जो नीचे वाले उसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट, अच्छा जो ऊपर लिखा जाता है पावर की फॉर्म में से कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। अच्छा पावर तो हम अपने दिमाग में कहते हैं, पावर कोई वर्ड नहीं होता, मैथ में भी ये इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। उसके निस्बत स्केयर हम इस्तेमाल करते हैं, क्यूब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये सुपरस्क्रिप्ट होता है, कोई भी चीज़ ऊपर लिखनी जरूरी हो, पावर ही हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, सुपर होता है ऊपर, सब होता है नीचे। सबस्क्रिप्ट मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये पावर है, और पावर का आगे मैं लिख देता हूँ 2, तो ये 23। अब ये 23 को मैंने सुपरस्क्रिप्ट बनाना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, सिर्फ 23 को सेलेक्ट करूँगा, और मैं यहाँ पे चला जाऊँगा और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास बन जाएगा। लेकिन अगर और से देखें तो मैं इस एरो को आगे लेके आऊँगा, फिर दोबारा अगर मैं यही भी लिखना शुरू कर दूँगा तो सारे सुपरस्क्रिप्ट बन जाएंगे, ठीक है। मैं ये नहीं करूँगा, मैं दोबारा देखिए ये अब सिलेक्टेड है, इसको अनसेलेक्ट करेंगे हम, और फिर वो देखें आप आपकी पोजीशन पे आ चुका है, हम उसी आप उसी पोजीशन पे लेकर चलेंगे। सेम इसी तरीके से अगर मैंने इसको सबस्क्रिप्ट बनाना है, उसकी भी शॉर्ट कीज मौजूद हैं, आप देख लें और से आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास H2O जब लिखेंगे या इस तरह के आप फॉर्मूला लिखते हैं तो ये आपके पास मौजूद होना चाहिए। किसी चीज़ को अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन तो मैंने आपको बता दिया, कंट्रोल यू भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल है अंडरलाइन करने के, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसको थोड़ा सा स्टाइलिश बनाना है, ठीक है। वो छोटे बच्चों की बात कर लें, नोट्सों की बात कर लें, तो अंडरलाइन को मैं थोड़ा सा बेहतर बनाना चाहता हूँ, तो मैं ये डबल या ट्रिपल लाइन को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको क्लियर शायद नजर नहीं आ रही, लेकिन ये डबल लाइन हो चुकी है, तो साइज अगर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो आपको इजीली ये क्लियर होता होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं, अटैलिक करना है तो अटैलिक पे क्लिक करेंगे तो अटैलिक हो जाएगा, और बोल्ड करना है तो बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड और अनबोल्ड दोनों हो सकते हैं। यहाँ तो कोई इश्यू है तो बताएं। उसके बाद जब आप मेन क्वेश्चन नंबर की क्वेश्चन की हेडिंग देते हैं, क्वेश्चन नंबर सपोज करें 1, और उसके सब पार्ट्स बनाते हैं, उसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे आई लिखें, उसके बाद कोई स्पेस नहीं देनी है आपने, उसके बाद डॉट लिखें और डॉट के बाद स्पेस दबा दें, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ऑप्शन आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक्सक्यूज मी सर, पहले स्टेप 2 में ऐसा ही मैं करती थी तो ठीक हो जाता था, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। मे भी उसकी सेटिंग में कोई इशू। तो आप सिंपल उसको ये करें, आप सारे लिख लें जितने भी क्वेश्चन हैं। अगर ये देखें आपने ये 5-10 क्वेश्चन लिख लिए, उसके बाद आप जाएं यहाँ पे, अगर नंबरिंग नहीं देनी तो ये बुलेट्स होती हैं, अगर नंबरिंग देंगे तो ये नंबरिंग किसी किसी काउंटिंग करनी चाहिए, तो ये आप लोगों को आइडिया होगा। अगर ये देनी है आपने, ये देनी है, ये आप स्टाइल आप तो ये देते हैं, या फिर ABC बनाते हैं, कुछ भी आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। सर जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे आई लिखा है, ये क्वेश्चन 1 हो गया, इसके नीचे हमने आंसर लिखा है। अगर क्वेश्चन 2 लिखेंगे तो सर वो दोबारा जाए तो दोबारा वो आई हो जाता है, 2 आई नहीं होते। मैं समझा नहीं, आप कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, ये देखिए आप इसका आंसर लिखा नीचे, क्वेश्चन 1 हो गया, नीचे लिखा आई, हाँ आई लिखा, आई लिखे सर, फिर आंसर लिखे। अच्छा यहाँ कह रहे हैं यस सर जी। अब नीचे है, अब 2 लिखे। अच्छा वो खुद लिखना पड़ेगा 2, मतलब अगर वो वाले को क्लिक करेंगे फिर नहीं होगा। आप इस तरह करेंगे, आप कह रहे हैं यहाँ पे क्लिक करने सर से अगर यहाँ पे सिलेक्ट करें दोबारा आई आता है, 2 आई नहीं ये आते। देख लें। सर मैं करती हूँ 1 आई आता है। नहीं मैंने आपके सामने की, सर क्योंकि ये आपका जो दोबारा पहला मूव करके दोबारा करना। मैम आपका जो पहला आई है ना,
वो लिस्ट बना नहीं होता। लिस्ट बनने की ये याद रखिएगा, जब लिस्ट बनती है, ये देखिए मैं आई ये दबाया, उसके बाद स्पेस बाई, तो ये हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट हो गया कि ये लिस्ट बन चुकी है। अब इससे मैं आगे जाऊँगा तो हमारे पास वो सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। अगर सर वही कह रहे देखिए जहाँ पे आपने अपना आप नेम अक्सर आप अक्सर क्या करते हैं, जब भी नेम लिखा जाता है Yes, sir. तो नेम में आप क्या करते हैं, मैंने जो अक्सर देखा है, आप ये करते हैं सर, स्पेस नहीं देते, Yes. स्पेस नहीं देते, उन्हें पता नहीं चलता कि ये क्या चीज़ है। बेटर भी यही है कि आपने जिस लाइन से शुरू करना है उसके बाद यहाँ पे जाएं, जिस स्टाइल में आपने जाना है वो सेलेक्ट करें, फिर आप आगे आएंगे और यहाँ पे जो भी आंसर लिखना, उसके बाद दोबारा आप जाएं, यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट करें, उसके बाद जो भी आपने लिखना लिखें, और उसके बाद सर वो फिर जब पहले सिलेक्ट करते हैं वो फिर मूव कर देना, वहाँ से सिलेक्ट हटा देना, नहीं वो ऑटोमेटिक वो खुद ब खुद होता है, हाँ वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं एक दफ़ा और एक्सप्लेन करता हूँ, गौर से देखें। एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, उसके पार्ट्स है, इसका पार्ट नंबर 1 आपने करना है। एक तो ये मेथड था, मैंने आपको बताया ये करें, उसके बाद ये करें, उसके बाद स्पेस दे, तो ये जो चीज़ साथ आ जाती है और उसकी जगह चेंज हो जाती है, इट्स मीन कि वो इनलिस्ट हो चुका है। अदरवाइज वो इनलिस्ट नहीं हुआ होगा अगर ये चीज़ें आप नहीं करेंगे। अगर जैसे आप कह रहे थे, मैं अगर आई डॉट उसके बाद अजमल लिख देता हूँ तो ये इनलिस्ट नहीं होगा, ये लिस्ट नहीं बनेगी, नंबरिंग नहीं आएगी। नेक्स्ट में जाऊँगा तो देखें वैसे का वैसे ही। सर अच्छा ये दोबारा मत से करें, आई लिख के स्पेस देके अब एंटर करें। अब सर यहाँ पे कुछ लिखे व्हाट इज कुछ भी लिख दें, अब इसका ये क्वेश्चन मार्क डालें है, अजमल का ये क्वेश्चन मार्क डालें सर। जी सर यही से आप एंटर करें, हाँ अब ये 2 आ गया, अब यहाँ पे जब आंसर लिखेंगे ये 2 रिमूव हो जाएगा। हाँ जी, आप इसको बैक स्पेस करेंगे, क्या करेंगे, बैक स्पेस करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे आंसर। ठीक है, आंसर आ गया। Yes. उसके बाद जब नीचे जाएंगे Yes. तो आप दोबारा वहाँ सेलेक्ट करेंगे, लिस्ट दोबारा शुरू हो तो 2 से ही होगी। या फिर अगर वहाँ से नहीं करना तो जैसे मैं करता हूँ डबल आई, वो सर मैं ऐसे किया करती थी, अब लैपटॉप में नहीं हो रहा चल खैर आप उधर से सेलेक्ट करें, लेकिन मुझे ये ज़्यादा इजी लगता था। पर वो इतना इशू तो नहीं है। हो जाता है, देखिए करके दिखाना, नहीं यहाँ से नहीं, ऐसे मैम यहाँ से वो फुल स्टॉप वाला कह रहे हैं। ये वाला ये लगा के जब मैं ऐसे स्पेस देती थी ना तो वो मेरा सेलेक्ट हो जाता था लिस्ट में। अब नहीं होता, मेरी इससे स्पीड ज़्यादा थी, अब वैसे करती हूँ मेरी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग इसको थोड़ा सा इंगेज कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को लेकर जा सकते हैं। नंबरिंग देनी है और या बुलेट्स बनाने हैं, तो ये इस तरीके से आप जब तक ये नहीं ना करेंगे ये वाला काम, तो अगर मैं एग्जाम्पल बताऊँ, मैं ये काम नहीं करता। अभी तो मैंने इनका जो दरमियान में रिमूव वगैरह किया हुआ है, अब आप गौर से देखें तो हमें कितना टाइम लग रहा है ये लिखते हुए। और फिर आपको एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा डॉट के बाद एक स्पेस लाजमी होनी चाहिए, डॉट के बाद एक स्पेस लाजमी होनी चाहिए, अदरवाइज वो इंग्लिश के रूल के खिलाफ है। जो इंग्लिश का बेसिक रूल है, हम इसको बोल्ड खत्म कर लेते हैं, चलिए बोल्ड रहने देते हैं, हम इसको अंडरलाइन खत्म कर लेते हैं। जो बेसिक रूल होता है हमेशा, आप चाहे हैंड रिटन लिख रहे हैं जैसे भी, तो डॉट के बाद में फुल स्टॉप के बाद एक स्पेस होनी चाहिए, फिर नेक्स्ट होना चाहिए, और फिर नेक्स्ट जो भी होगा वो कैपिटल से स्टार्ट होगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा ताकि आप लोगों को फ्यूचर में फ़ायदा हो और हमें इस चीज़ को हैंडल करते हुए आसानी हो। जी ये क्लियर हो गया यहाँ तक। तो कलर की जरूरत नहीं होती ब्लैक एंड वाइट में, तो कलर यही आप रखेंगे, अदरवाइज ये कोई भी अगर आप कलर देना चाहें तो आप कलर दे सकते हैं। तो अगर कोई रंगीन आपने करना है तो ये कर सकते हैं, अदरवाइज ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है तो आप ये काम नहीं करेंगे। अच्छा ब्लैक एंड वाइट है और उसमें भी थोड़ी सी अगर चेंजिंग करनी है, आप कलर देने हैं, तो उसमें आप ब्लैक कर सकते हैं, ग्रे कर सकते हैं, तो ग्रे के शेड आ जाते हैं हमारे पास। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपने माइंड में रखनी है। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। उसके बाद इंसर्ट पे चले जाते हैं। इंसर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप असाइनमेंट्स बनाते हैं तो असाइनमेंट का एक होता है कवर पेज बनाना होता है। तो ये कवर पेज बहुत सारे स्टाइल के दिए हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक असाइनमेंट बनानी है तो ये आप कवर पेज सेट कर लेंगे।
तो कवर पेज में देखें साल कौन सा है, डॉक्यूमेंट का टाइटल कौन सा है, ठीक है, नेम क्या है और कौन सी डेट है, ये सारा कुछ आपका ऑटोमेटिक। और यहाँ पे अगर कोई प्रोजेक्ट की कोई फ़ोटो है तो वो फ़ोटो यहाँ पे लगा दें, आपके पास ऑटोमेटिकली बड़ा एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगा। वहाँ ज़्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है, अगर वहाँ से निकालें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये बड़े एक अच्छा सा ऑटोमेटिकली फ्रंट क्या पेज निकालना है? इंसर्ट, अगर पिक्चर ना लगानी हो सर, ये रिमूव करनी हो हाँ सिंपल क्लिक करें और डिलीट कर दें बस, Yes. ठीक है। ये नहीं तो बगैर पिक्चर वाले नहीं, ये देखें बगैर पिक्चर की ये एक चीज़ है, या डॉक्यूमेंट का नेम या माइक्रोसॉफ्ट या जो भी कंपनी का नेम या वर्चुअल यूनिवर्सिटी यहाँ लिख लें, यहाँ जो असाइनमेंट का नेम लिख लें, या अपना नेम लिख लें, टाइटल लिख लें, डेट लिख लें, किसको सबमिट करवानी है, सर डेट कौन सी लिखनी है? जिस डेट को सबमिट करवानी है, जिस डेट को आई होती है नहीं जिसे सबमिट करवानी है वो डेट लिखनी होती वो है। डेट। तो ये चीज़ें हमारे पास हैं। ये स्टाइल है बड़ा एक नाइस है, ये थोड़ा सा स्टाइलिश है। तो इस तरह की ये बहुत सारे स्टाइल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हुए हैं, आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती इसमें। अदरवाइज़ अपना स्टाइल बनाएं और एक यूनिक सी प्रेजेंटेशन दिया करें, अदरवाइज उन्होंने अगर कोई पैटर्न दिया तो उसके मुताबिक चलें। जी यहाँ तक क्लियर है। अच्छा कंट्रोल जी से आपको जैसे सबको पता है कंट्रोल जी का होता है, सर वो जो डिलीट होता है वापस आता है। हाँ तो कंट्रोल, अच्छा एक होता है अनडू, एक क्या होता है Redo. रीडू। रीडू में क्या होता है? वो जो कंट्रोल जी से खत्म हो जाए ना तो वो मैं एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे कंट्रोल जी से बहुत सारी चीज़ें डिलीट कर दी ना जो कवर पेज बना, Yes. तो मैं कंट्रोल वाई कर दूँगा, क्या कर दूँगा Control? वो वापस आ जाएगा। कंट्रोल वाई रीडू इसे कहते हैं कि दोबारा जो हमने कंट्रोल जी से ख़त्म किया था हम चाहते हैं कि वो दोबारा स्टाइल आ आज जाए। सर क्या कंट्रोल वाई से आप कुछ लिखे ना, मैंने इतना कुछ लिखा हुआ था तो कंट्रोल जी करें ना, कंट्रोल जी किया, दिखाएं कंट्रोल जी करें। जी आ रहा है, कंट्रोल जी करें तो वाई आ जाए, कंट्रोल देखें कंट्रोल ही ये दोबारा क्या है यार? आई आ गया। तो जितना लिखा था आ गया। सर कंट्रोल जी से वापस आएगा। हाँ जी, यानी देखिए मैं एग्जांपल बताता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अच्छा ठीक है। अब मैं ये नहीं लिखना चाहता, यस सर। मैं कंट्रोल क्या कर दूंगा जी, ये तो वो मिटा देगा। लेकिन मैं कहता नहीं ये चाहिए था, मैं कंट्रोल क्या कर दूंगा वाई, वो दोबारा आ जाएगा। सर वो कंट्रोल जी से नहीं आता वापस। कंट्रोल जी से वो चीज़ जो हमने लिखी है और गलत लिख दी वो गलत वापस चला जाता है, डिलीट हो जाती है। यस सर। कंट्रोल वाई से वो वापस आ जाता है। कंट्रोल वाई से। जी आ गया हाँ जी जी। तो इस तरीके से आप मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ और ये हमारे पास इंसर्ट का जो फर्स्ट है ये ख़त्म हो गया। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, आपने 50 पेजेस लिखे हुए हैं या 20 पेजेस, 10 पेजेस, 5 पेजेस, और किसी पेज के अंदर ही आपने एक और पेज इंसर्ट करना है तो ब्लैक पे भी क्लिक करके आप उसके आगे इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें सेटिंग कोई ख़राब नहीं होगी। ये हम अक्सर पता क्या करते हैं, मैं इसकी एग्जाम्पल देने के लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ और ट्राई इसको हम काफ़ी ज़्यादा पेस्ट करें। ये इतने पेजेस हैं आपके पास, तो मैं चाहता हूँ और आपने कुछ लिखना था तो इस पेज के बाद ये जो पेज हमारे पास, इसके बाद आप चाहते हैं कि एक और पेज हो जहाँ मैं कुछ लिख सकूँ और बाकी सारे कोई भी चेंज ना हो। हम क्या करते हैं अक्सर करने वाले, ठीक है, हम यहाँ पे एंटर करना शुरू कर देते हैं, अगला पेज वो आगे चला जाता है तो फिर हम करते हैं वो सेटिंग अक्सर ख़राब हो जाती है। आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इस पेज से अगला करना है तो एक ब्लैंक पेज यहाँ पे आ गया, ये देख लें, तो ब्लैंक पेज करेंगे, एक ब्लैंक पेज हमारे पास ये देखें आगे, वो आगे चला जाएगा और ब्लैंक पेज नहीं नया आ जाएगा, किसी की कोई सेटिंग ख़राब नहीं होगी, बस एक पेज आगे चला जाएगा। जहाँ हमने इंसर्ट करना है, जिस पेज से आगे इंसर्ट करना है उस पेज पे क्लिक करके वो ब्लैंक पेज इंसर्ट कर देंगे तो आपका ये देखिए पेज ब्रेक एक बड़ा अच्छा फीचर है, लेकिन आई थिंक सो अभी आपको जरूरत नहीं है इसको इंशाल्लाह कोई लेके सर ये चलेंगे। बता दें, खैर फिर ये कोई लेके चलते हैं। लेकिन मेरे पास का पेज ब्रेक करना पड़ता है। हम इसका साइज बड़ा कर देते हैं, ये सबसे छोटा साइज होता है। हम यूनिवर्सिटी में गए तो हमारे टीचर ने प्रॉमिस किया था हमसे कि मैं पेपर आपको ना एंड पे पेपर दिखा दूंगा, यानी सेमेस्टर के एंड पे मैं पेपर आपको दिखा दूंगा। हमने कहा सर की बात है, सब दिखाई देंगे जो क्वेश्चन पेपर, ठीक है जी, मेरा प्रॉमिस है आपके साथ, मैं पेपर आपको दिखा दूंगा। हम तो बड़े खुश हो गए, सेमेस्टर एंड होने वाला था, फाइनल पेपर होने वाले थे, हमने सर को याद करवाया ऐसा जी पेपर तो दिखा दें।
तो सर ने यहाँ पे ये जो भी एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये तो बहुत बड़ा साइज हो गया ना, इसको सर ने मेरे ख्याल से ये वही 72 12 है, और 14 रखा होगा इसमें। हाँ 12 इसका साइज रखा और यहाँ से अभी 20 है, इसको क्या कर दिया 10 करते देखते रहो, प्रोजेक्टर पे हमें दिखा दिया तो कहते देखते रहे। तो क्वेश्चन तो बहुत की लेकिन नजर कुछ नहीं आया। ठीक है, खैर हम आगे चलते हैं। अभी जब पेपर बना रहे हैं तो कोशिश करें 100 साइज रखा करें ताकि आपको पता हो कि पेपर की जो सेटिंग है वो किस तरीके से होगी। अगर पेज का साइज कम रखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए मैनेज करना। अच्छा, इंसर्ट में एक और चीज़ थी कि मैम कह रही थी कि ब्रेक पेज क्या होता है। ये देखें, ये ब्रेक पेज आ गया, बस इसका क्या कोई मामला है, तोड़ दिया मैंने। जहाँ मैं क्लिक करूँगा वहाँ से ब्रेक करके वो अगले पेज पे ले जाएगा। ठीक है, ज़्यादा तो यहाँ पर है, इतना से ऐसा तोड़ देंगे। हाँ ठीक हो गया। मीन कि आपने पूरा पेज लिखा हुआ है और आप कहते हैं कि ये जो हाफ है ये अगले पेज पे चला जाए तो वहाँ पे ब्रेक आप कर सकते हैं। तो ये इसी किसी हमारे पास होता है। इसका बहुत कम लोग यूज़ करते हैं लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं उनके लिए बहुत काम का होता है। इसके बाद होता है टेबल। टेबल बहुत एक अच्छी चीज़ है, आपको डब्बे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और कितने टेबल बनाने ऊपर लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल रो मीन 2 रोज हैं 1 कॉलम, सॉरी 1 रो है 1 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, जैसे मैथ में लिखा जाता है ये उसको उल्ट होता है थोड़ा सा। इसमें रो बाद में लिखी जाती है, कॉलम पहले लिखा जाता है मैथ में होती है ना सर जी। और जब मैथ में आप लिखते होते हैं तो उसमें पहले रो होती है फिर कॉलम होता है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये आप जितने भी करना चाहिए मैक्सिमम यहाँ पे जो साइज दिया होता है 8x10 का दिया होता है, यानी 8 रोज और 10 कॉलम्स दिया होता है। लेकिन अगर आप इससे भी बड़ा करना चाहते हैं तो आप आखिरी जब सेल पे आते हैं तो वहाँ पे टैब का एक बटन होता है, टैब का, बल्कि आप एंटर से भी कर सकते हैं लेकिन एंटर से नहीं होगा, उसका साइज बड़ा हो जाएगा। टैब का एक बटन होता है वो कैप्स लॉक के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जितना भी आप क्लिक करते जाएंगे उसको दबा के रखेंगे उतने ही ज़्यादा चीज़ें आपको ऐड हो जाएंगी। सर वो लास्ट में कर्सर उस पे रख के टेबल पे, हाँ आप कहीं भी रख लेंगे ऑटोमेटिक वहाँ पहुँच जाएगा। मैं यहाँ पे रखता हूँ ना, वो करते 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 वहाँ पहुँच जाएगा और फिर जितनी मर्जी आपने कर ली। सिर्फ सर टैब करना है, टैब का बटन दबा के रखना, बस उससे लेफ्ट बदला जाएगा। मैं इसके बाद एक करना चाहता हूँ, यस सर, एक दफ़ा टैब दबा दूँगा। ठीक है। अगर दूसरी दफ़ा करना चाहता हूँ तो वहाँ फिर लाऊंगा और एक दफ़ा और कर दूँगा। यस ठीक है, अगर मैं एक और काम करना चाहूँ कि मैं जस्ट इसमें एक कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, एक कॉलम, कॉलम इसमें कितने 10 कॉलम्स हैं, ये 10 कॉलम्स हैं इस तरह लंबाई में ये वाले। ठीक है, तो मैं इंसर्ट एक कॉलम करना चाहता हूँ तो मैं राइट क्लिक करूँगा राइट जी, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आ गया यस हाँ जी, हाँ जी। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, यानी जहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है वहाँ से लेफ्ट होगा, राइट करना है राइट होगा, इंसर्ट रो अबव उसे अबव या बिलो, तो जो आप करना चाहें वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, इंसर्ट लेफ्ट, ये देखिए लेफ्ट में एक इंसर्ट हो गया। इस तरीके से आप इसको जैसे एक कोई किसी कॉलम में कोई टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, उसके बाद हमें ये था कि नीचे वाले में लिखना चाहिए, उसके लिए ये है मतलब कि बाकी सारा लिख लिया, दरमियान में कुछ ऐड करना है। हाँ, ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप जब इंसर्ट में जाते हैं तो टेबल में जस्ट हमारे पास कितने कॉलम होते हैं, 10 कॉलम होते हैं। लेकिन अगर मैं 10 के बजाय मैं 11 कॉलम करने हैं या 12 करने हैं, नहीं वो बात नहीं है, जैसे पहला कॉलम है ना, आपकी बात भी पहले ठीक है, लिख लिया। वो भी ठीक है। जी। सारा तो आपने सब में लिख लिया और आप चाहते हैं दरमियान में एक नया स्टूडेंट आके उसका नाम यहाँ पे इंसर्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप कॉलम ऐड कर सकते हैं। अब ये क्या है, Yes. तो ये भी ठीक है। और अदरवाइज अगर आप ये चाहते हैं कि ये 10 स्टूडेंट्स के कॉलम बन गए हैं तो 11 एक नया स्टूडेंट्स आ गया, तो यहाँ पे इंसर्ट में जाएं और यहाँ पे भी एक कॉलम एंड पे भी इंसर्ट किया जा सकता है। जो टैब के जरिए रो इंक्रीज होंगी, कॉलम इंक्रीज नहीं होंगे। टैब के जरिए रो इंक्रीज हो सकती है, कॉलम इंक्रीज नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे रोज कितनी है हमारे पास, मैक्सिमम 8 रोज हैं, लेकिन हमारे पास सपोज कर 1 मंथ का हमने शेड्यूल बनाना है हर बच्चे का, तो ऊपर बच्चों के नेम आ जाएंगे। 1 मंथ मीन 30 डेज का बनाना है अटेंडेंस का, जैसे अटेंडेंस रजिस्टर होते हैं, मुझे 30 रोज चाहिए, तो फिर जाकर वो ठीक होगा, अदरवाइज ठीक नहीं होगा। जी क्लियर हो गया? सर अगर इसमें हम स्टार्ट करना चाहें तो
स्टाइल जो मर्जी करे, हो जाता है करके देख। हो जाता है, ये देखिए। असल अफसा अफसा नीचे एक एक्सटेंशन थी ना, वो लेके आए। छोटी वाली सर नीचे लेकिन जो वरना एंट्री करेंगे वो वो प्राइस बहुत बड़ा। जल्दी ले जल्दी। जी यहाँ तक क्लियर हो गया। Yes. अब कुछ भी आप एंटर करना चाहते हैं तो एंड पे हो गया। अच्छा मैं एग्जाम्पल बताऊँ कि ये कॉलम है, ये रो है, इसका साइज बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो सिंपल Yes, जितना भी बहुत एंटर करता जाऊँगा वो साइज का ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ ये कॉलम का साइज बड़ा हो, इस कॉलम की साइज छोटा भी हो, जैसा हम कहते हैं नंबरिंग काउंटिंग 1 2 3 कितने स्टूडेंट्स हो गए हैं, वो हमेशा छोटा साइज ही होता है, और नेम वाला कॉलम बड़ा होता है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये इस तरीके का आपके पास साइन आ जाएगा लाइन के ऊपर, इसको जहाँ तक मैं रखना चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि क्लास का भी जो सेक्शन है वो बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं बड़ा होना चाहिए, तो चलो इसको मैं छोटा करता हूँ। इस तरीके से अगर आपने अपने कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसका स्टाइल बड़े अच्छे हैं, यहाँ पे जाएँ, ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है तो इसके ऊपर क्लिक करें तो ये स्टाइल आ जाते हैं इसके कुछ। ये देखिए, अगर आप इस तरह का स्टाइल देना चाहिए ऊपर स्टाइल आ जाते हैं, इस तरीके से कोई भी आप स्टाइल दे सकते हैं इसको आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अदरवाइज यहाँ पे क्लिक करें, ये जो एरो है तो ये एरो से नीचे ये देखिए मैं बताती हूँ ये तो सेट करें यहाँ से जो ऊपर वहाँ लगा नीचे कर लेते हैं हाथ से नीचे रख लें, नीचे रख लें। और यहाँ एक्सक्यूज मी सर, ये टेबल स्टाइल बताएं जरा, पेज लेआउट में आएंगे ना? नहीं यहाँ पे वो आता है ये आया है रेफरेंसेस में। ये देखिए यहाँ पे ठीक है, अब बैठे। ये क्लियर यहाँ तक? सर ये दोबारा बता दें टेबल स्टाइल का पूछा सिंपल आपने क्या करना है, मिसाल का होम में थे आप, ठीक है, और टेबल का करना है तो टेबल पे क्लिक करके ऊपर डिजाइन का ऑप्शन है, ये डिजाइन करने का जी आगे यस ये डिजाइन का ऑप्शन है, इसमें ये बहुत सारे डिजाइन हैं, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसमें से भी अगर आप कुछ देना चाहें डिजाइन तो आप ये देख सकते हैं। ठीक हो गया। अदरवाइज इसका और इजी एक मेथड है, आप इस टेबल के शुरू में आए, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, या फिर लास्ट में आएंगे तो ये देखिए ये ऑप्शन आ रहा है छोटा सा, देखिए लैपटॉप पे देखें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। टेबल है ये आ गया। इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो वो ऑटोमेटिक डिज़ाइन आता है। ये ऐसे मैंने वो किया हुआ है ना, पेज पेज ब्रेक किया हुआ है। कंट्रोल से कर लें, न्यू फाइल ओपन कर लें, कुछ भी ठीक हो, आइडिया हो गया ना आपको। यस अब आगे देखें शेडिंग का एक ऑप्शन होगा, अगर आपने शेड करना है किसी को तो आप ये देखें, मैं एग्जांपल तो मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट किया होता है, जैसे पूरा टेबल शेड हो गया, ठीक है, तो मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे किसी एक रो को सेलेक्ट कर देता हूँ और नेक्स्ट हम डिज़ाइन में जाते हैं, डिज़ाइन से हम शेडिंग पे जाते हैं, कोई भी कलर देना चाहते हैं तो वो उस लाइन का या रो का या कॉलम का जिसको हम सेलेक्ट किया होगा उसका कलर हो जाएगा। यस ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखें बॉर्डर, देखिए यहाँ नीचे बॉर्डर का ऑप्शन पे जाएं, बॉर्डर में टॉप टू बॉटम बॉर्डर है, लेफ्ट टू राइट है, ये ऑल बॉर्डर्स हैं। हम ऑल अक्सर देते होते हैं कि जब पूरे को मुकम्मल को कवर करना हो तो हम ऑल दे देते हैं, अगर सिर्फ हम चाहते हैं सेंटर में ना हो तो इनसाइड द टेबल हो तो इनसाइड वाला सिर्फ दे देते हैं, तो ये इसको हम क्लिक करके ये मुकम्मल टेबल को सेलेक्ट करेंगे और बॉर्डर पे जाएंगे, सिर्फ अगर हमने देना है सेंटर में इनसाइड, ये देखा कि साइड वाले तो आगे हैं और आउटसाइड वाले बॉर्डर नहीं, तो इसी के साथ इसको डिजाइन दे सकते हैं। ठीक हो गया, इसको हम कंट्रोल सी कर लेते हैं। सर ये जो हमने ये बनाया कॉलम, इसमें से अगर ये
फर्स्ट जो रो है हमारे पास, इसमें से हम ये ऊपर से लाइंस कट करना चाहें, ये वाली, यस ये लाइन, नहीं ये रो पूरी, हाँ सिंपल है, राइट क्लिक करें और ये जहाँ इंसर्ट है, इंसर्ट के नीचे डिलीट सेल है, तो आप लिख सकते हैं इंटायर रो, डिलीट द इंटायर रो, इन मुकम्मल रो कर रहे हैं आप, रो नहीं सर, जो लाइंस है, लाइन लगी हुई है, क्या मतलब? ये वाली लाइन कह रहे हैं आप, यस सर ये लाइन, इसको ये पूरी रो नहीं खत्म करनी सर, ये जो इसके अंदर लाइंस लगी हैं वो जो ऐसे वर्टिकली लाइंस लगी हैं वो मैंने आपको बताया है, यहाँ पे एक डिज़ाइन आ गया है ये वाला, हाँ। ये कर दें या ये सिंपल, वाला ऊपर डिज़ाइन यहाँ पे आप करें और उसको डिजाइन करें। चलिए आगे चलते हैं। इसमें एक दो चीज़ और रह गई हैं। एक्सक्यूज मी सर, मैंने ये वाला भी कर दिया, वो जो साइडों से लाइंस खत्म कर देना। खैर वो भी किया जाता है, ये सारे ऑप्शन इसमें है। ये बॉर्डर में जाएंगे ना, यहाँ लिखा है बॉटम बॉर्डर होना चाहिए, टॉप होना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए, राइट होना चाहिए, नो बॉर्डर होना चाहिए, यानी कोई बॉर्डर ना हो। तो ये देखें अब कोई बॉर्डर नहीं है, टेबल तो है लेकिन कोई, देखिए टेबल है लेकिन कोई बॉर्डर नहीं है। ये तो आपका अपनी मर्जी, आप जितना करना चाहें। उसके बाद ये देखें जो बॉर्डर लाइन है वो कितनी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, बारीक होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए, इस तरह की स्टाइलिश होनी चाहिए, ठीक है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उसका साइज़ कितना होना चाहिए जो स्टाइलिश आपने बनाया है, तो ये इसके डिफरेंट स्टाइल हैं, साइज़ हैं, तो आप इसके डिफरेंट साइज़ दे सकते हैं। अरेज करना है, कुछ एग्जाम्पल सब अरेज करना है, तो मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो अरेजर बन जाएगा। मैम देख रहे हैं आप भी, कहाँ तो यहाँ पे क्लिक किया, इससे मैंने पहले देख लिया मैंने, यहाँ पहले अरेजर पे गया है और अरेजर इस तरह का अरेजर बन जाएगा। और इस कॉलम को मैंने ये देखें ये करना है, तो जो मैम कह रही थी कि वो ख़त्म करना है, ये देखो हम एक एक करके इसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? यस ये देखिए यहाँ से हम एक एक तो ये करके, रेजर इसी में ही होगी, इंसर्ट में, ये डिज़ाइन में है। डिज़ाइन होता है टूल, किसका टूल, टेबल का, हर चीज़ का अलग डिज़ाइन होता है। जब हम टेबल की बात करें तो सिर्फ टेबल में अरेजर आएगा। ये वो वाला टेबल भी बनाया जा सकता है जो बच्चों के खेलने के लिए नहीं बनाते, यहाँ से यहाँ जाए, बिल्कुल बनाया ठीक जाएगा। है। ये जैसे अभी मैंने बना दिया, हाँ कुछ चीज़ें काट दें और कुछ कार्ड उसमें है से इसमें से इस तरीके से इस पर ड्रॉ टेबल कहीं पर ड्रॉ करना है तो मैं इसको अपनी मर्ज़ी से ऐसे खींचूँगा, तो अगर वो देखेंगे तो वो वही चीज़ बन जाएगी हमारे पास। मैं जहाँ क्लिक करता जा रहा हूँ और लिखता जा रहा हूँ वो ऑटोमेटिक चीज़ बनती जा रही है, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक तो क्लियर होगा आप लोगों को। यस पेन कलर है, अगर मैंने किसी को कलर देना है तो पेन कलर आ जाएगा, तो बॉक्स पे मैं जाके इसको क्लिक करूँगा तो वो उसका कलर होता जाएगा। बॉर्डर का जो कलर है वो चेंज होता जाएगा। देखिए मैं जिस बॉर्डर को चेंज करना चाहूँ, सारे बॉर्डर चेंज नहीं होंगे, मैं जिसको चेंज करना चाहूँ सिर्फ वही वाला बॉर्डर। यहाँ तक क्लियर है? यस अच्छा जी, लेआउट पे चले जाते हैं। तो लेआउट में भी ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, शायद अभी इतना ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह इनको नेक्स्ट लेक्चर में क्योंकि एडवांस में थोड़ा चला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इंसर्ट में चलते हैं। टेबल हो गया, इंसर्ट का टेबल मुकम्मल हो गया। यस शेप्स आपको पता है कि आप आर्ट भी पढ़ा, शेप्स भी आपको आइडिया, स्मार्ट आर्ट भी आइडिया होगा, चार्ट भी आइडिया होगा। हम चलते हैं इमेजेस की तरफ, पिक्चर की तरफ। तो पिक्चर्स भी वैसे तो आपको आइडिया है कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल तौर पर मैं कोई भी एक पिक्चर ले लेता हूँ। ये पिक्चर मैंने क्लिक कहाँ किया हुआ था, टेबल के एक सेल के अंदर। जब इंसर्ट पे गया तो उसी सेल के अंदर ही वो पिक्चर ऐड हो गई, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता, तो मैं इसको सिंपल क्लोज करूँगा और मैं तमाम फॉर्मेट ख़त्म करके एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ, ठीक है, ताकि इंसर्ट वाला जो ऑप्शन है ये आपका क्लियर हो जाए। इंसर्ट मैं एग्जाम्पल का पिक्चर में गया, यस मैंने ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ के सुनाए ना। आई विल कर बच्चों के मुस्तकबिल में बात करते हैं, चल है ना शानदार बात। वैसे ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? ये स्पेशल पेरेंट्स के लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है कि अगर टाइम हुआ तो मैं सुनाऊंगा, तो अपने बच्चों की फ्यूचर को तबाह करते हैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल भी आप सेलेक्ट किए, इसके ऊपर डबल क्लिक करें। इसके ऊपर क्या करें? डबल क्लिक जब करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक तो है पोजीशन का, यस इसका
इसकी पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि ये एग्जैक्ट कहाँ पे होना चाहिए, राइट पे, लेफ्ट पे, टॉप पे, बॉटम पे, सेंटर पे, राइट लेफ्ट कुछ भी, तो आप उनमें से सिलेक्ट करें तो ऑटोमेटिक जो इमेज है वो वहीं पे चलेगी। सेंटर होना चाहिए तो इसमें सेंटर पे जस्ट क्लिक किया। इसके अलावा बॉटम पे होना चाहिए, व्यू को बॉटम सेंटर पे, बॉटम पोजीशन पे जाएंगे तो सर आगे ये ऑप्शंस आएंगे। जी ठीक है। आप इसकी जो पोजीशन रखना चाहें, मैं इसको थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा क्लियर हो। तो पोजीशन देखें, अगर मैं टॉप आप करना चाहता हूँ तो ये है। इससे पहले आपको पता है वो साइज लेआउट वगैरह आपने खुद कर ली नहीं सही। अगर राइट पे करना चाहूँ तो देखिए ये राइट पे हो गया, ये लेफ्ट पे हो गया, ये सेंटर लेफ्ट पे, सेंटर में, ये राइट लेफ्ट पे, ये सारे आपके पास ऑप्शन हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन होते हैं, आप उन पर क्लिक करके ये डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन है। और टेक्स्ट रैपिंग का एक ऑप्शन होता है, टेक्स्ट रैपिंग कहाँ से आती है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैं अगर इसको सेलेक्ट करके मूव करूँगा ना कहीं पे भी ये नहीं होगा। मैं इसको क्लिक करूँगा और टेक्स्ट रैपिंग पे आऊँगा। कोशिश करें यहाँ पे ना 2-3 तरह की टेक्स्ट रैपिंग ज़्यादा अच्छी होती है। एक होती है टाइट, एक होती है स्क्वायर। अगर बिहाइंड और इन फ्रंट करना है किसी के वो अलग बात है, ठीक है, तो उसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है या कुछ इस तरीके से। अदरवाइज हम आमतौर पर टाइट या स्क्वायर करते हैं। अब मैं स्क्वायर करके भी मैं इसको मूव कर सकता हूँ, मैं जहाँ रखना चाहूँ मैं रख सकता हूँ। लेकिन सर स्क्वायर से कोई हिल भी जाती है, अपनी जगह पे नहीं। उसका रीज़न ये होती है कि हमारी जो अलाइनमेंट है ना, एग्जाम्पल के तौर पर अब यहाँ पे एक और हम इमेज इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए ये इसी किसी हमारे पास इमेज, इसको हम नीचे करेंगे तो फिर आएगी। स्केल का मतलब ये होता है कि जहाँ तक ये इमेज आएगी ना, कोई और चीज़ शो नहीं होगी। जहाँ जहाँ इमेज आ रही कोई और चीज़ शो नहीं हो रही, ना ही कोई टेक्स्ट शो होगा, ना ही कोई इमेज शो होगी। और इसको मैं इस तरीके से कर दूँगा। अगर मैं इसको ये जो हमारे पास ओल्ड वाली है, इस टेक्स्ट रैपिंग में टाइप कर दूँगा तो इसमें भी आप देखें तो, लेकिन सिर्फ उतना ही होगा, मुकम्मल नहीं होगा। जहाँ तक तस्वीर जा रही है वो उतना ही उसको रैप कर रहा है, मुकम्मल रैप नहीं कर रहा। लेकिन सर इसमें ना बहुत मुश्किल से होती है, वो मिल जाती है। एक वो टेक्स्ट रैप करो, दूसरा नहीं किया हो तो फिर वो मिल जाती है अपनी जगह से। एग्जाम्पल तो अब यहाँ पे भी आप क्लिक करें, यहाँ पे भी आप टेक्स्ट रैपिंग में जाएं, यहाँ पे आप इसको स्केल करते हैं तो इसको आप कहाँ रखना चाहते हैं मुझे बताएं, मैं आपको रख के दिखा रहा हूँ। ये सर ये जो ढीले के टेक्स्ट रैप में जाए ना, करेंगे नहीं करें तो दोनों एक साथ जुड़ गए। व्यू आप करना सकते हैं या आपने वो ब्रेक किया हुआ है। ओ अच्छा ये ब्रेक वाला है। हाँ सही व्यू में है। सही है, सही है। व्यू में मैं ठीक हूँ। इंसर्ट पे जाए ना, इंसर्ट पे जाए। जो वो ब्रेकिंग थी ठीक हो गया। अभी एग्जाम्पल तो मैंने कहीं पे टेक्स्ट लिखना है तो अगर वहाँ पे वो कर्सर नहीं है, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे अगर मैं एंटर दबाते जाऊँगा तो तमाम चीज़ें नीचे चली जाएंगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिखना है तो आप बजाय एंटर दबाने के मैं कर्सर से डबल क्लिक कर दूँगा यहाँ पे, तो कर्सर ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं कर्सर यहाँ पे है तो कर्सर के ऊपर डबल क्लिक कर दूँगा। नीचे ठीक है, डबल नीचे आ गया। मैं तो ऐसे उर्दू का भी ऐसे करती हूँ, कभी एंटर करती हूँ कभी नीचे जाता है। टाइप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखा है तो टेक्स्ट को अपनी जगह से थोड़ा सा मूव करके खुद एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप स्केल रखेंगे तो स्केल का फ़ायदा ये है, यहाँ पे अगर देखें मैं इसको स्केल कर देता हूँ तो वो सेंटर में नहीं आने देगा, वो ये देखें उसको एक साइड पे लेगा। इसको अगर मैं ऊपर करता हूँ तो अपनी जगह में जुड़ता है। तो आई थिंक तो ये बहुत ईजी से टूल है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ, अगर एक चीज़ याद रखिएगा, जब मैं इन सबको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे पेज पे आप सॉरी इंसर्ट में जाते हैं और इमेजेस में कोई काफ़ी सारे सेलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए काफ़ी सारी इमेजेस हैं, अभी कुछ तो मुकम्मल पेज की हैं तो यहाँ पे वो आ नहीं सकती थी,
कुछ किसी से आप एग्जाम्पल दे, इसका मैं साइज छोटा करता हूँ तो ऑटोमेटिक वो वहीं पे चल जाएगी दूसरी पेज पे। इसका भी एक मैं साइज छोटा करता हूँ, ठीक है, तो उसके साथ एडजस्ट हो जाएगी। इसका साइज थोड़ा बड़ा भी किया जा सकता है, तो जितना आप करना चाहिए इसको आप कर सकते हैं। तो आप उसका साइज जो है इस तरीके से अलाइनमेंट करके उसको सीधा किया जा सकता है जितना आप करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा है, ये इसको थोड़ा सा चेंज करना थोड़ा टफ होता है जब आप पासों पर बहुत ज़्यादा डाटा के साथ लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उसकी अलाइनमेंट सीधी हो जाए और हाथों को स्पून के साथ इस्तेमाल करें तो ईजी हो जाता है। वो ये चीज़ें भागती हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको उठा के इधर लाना चाहूँगा ना, तो ये देखिए कुछ और ही बन जाएगा। समझ आ रही? तो मैंने क्या किया है, मैंने जस्ट ये कहा कि इसको मैं लेके ना उठा कर जी हो गया क्लियर। तो वो वहाँ से नए नए सिस्टम आ गए, नए नए इदारे आ गए, उनके सिस्टम बड़े अच्छे, उनके इदारे, उनकी रेपुटेशन। तो ये बहुत अच्छी उन्होंने बात की है और आई थिंक सो कि आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ पे ना फोकस करना चाहिए। कोई भी चीज़ पढ़ाएं उससे पहले कोशिश करें कि उस चीज़ को थोड़ा सा रीड करके पढ़ा देना। इट्स नॉट अ बिग डील, रीड करके थोड़ा सा पढ़ा देना और बता देना कि ये ऐसे होता है, रीडिंग बता दी, ट्रांसलेशन बता दी, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। बल्कि उसको थोड़ा सा सीख के उसको प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ, प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन के साथ उसको अगर लेके चला जाए तो ज़्यादा एक बच्चे में एक अट्रैक्शन पैदा करती है। तो ये हकीकत है कि अगर हम इन चीज़ को नहीं अप्लाई करेंगे, मैंने तुम्हारे से 15-20 दिन पहले ही सीखा सिखा था, उनमें से वीडियो सेलेक्ट करके, चीज़ें सेलेक्ट करके बहुत सारी काम किए जा सकते थे और हम शेयरिंग करें। मैं मामलों को भी चाहिए कि कैन टैब यूट्यूब पे जाएं, वहाँ सेलेक्ट करें जो बेस्ट चीज़ें लगती हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। जैसे एग्जाम्पल तो अब साइंस ही है, साइंस के कोई एक्सपेरिमेंट है या कुछ ऐसे उसकी वीडियोज़ हैं या कुछ भी इस तरह से जो बच्चे को लर्न करने में ईजी हो, वो सर्च करें, फाइंड करें, मेरे साथ शेयर करें, वो बच्चों के साथ शेयर किया जाए और बच्चों के पेरेंट्स को सख्ती के साथ कहा जाए कि हम अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को भी थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। अगर जस्ट हमने नोट्स दे दी हैं और मैक्सिमम चांस यही हैं कि 2-3 बच्चों के अलावा जिनका से लिखने वाला काम शायद सारे लिख लें, शायद इस डाट से चेक करवाना है तो याद किसी ने भी नहीं करना, क्योंकि वो यही कहेंगे और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं कल आके हमें ये ना कहें सर आपने पढ़ाया ही नहीं, तो बच्चों को तो रीडिंग भी नहीं आती तो वो कैसे याद करते। इसलिए कम से कम अगर हम इनकी वीडियो शेयर कर देते तो हम कहते हैं हमने वीडियो शेयर की थी, आपने क्यों नहीं पढ़ा। तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सिस्टम है, तो उसको हम सही कर सकते हैं, थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या प्लान होना चाहिए, मेरे ख्याल से आज एमएस वर्ड के लिए हम क्लोज करते हैं इसको थोड़ा सा ठीक है। और नेक्स्ट क्या प्लान होना चाहिए, क्या कहते हैं, मैं इसको भी स्टॉप करता हूँ।